The most famous game of all time was played in 1858 by Paul Morphy against two noblemen in an opera house in Paris. Morphy के पास ये सारे active pieces थे, so Black decides to chase away this bishop with pawn b5. Morphy उस टाइम पे ये रियलाइज करता है कि चेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है how well your pieces are placed, not what kind of pieces you have. So he sacrificed the knight. Why? क्योंकि इन exchanges के बाद you have an attack on the knight and black has to pin himself by playing knight to d7. Now Morphy put the pressure on the pin pieces with castles, a multi-purpose move. Now black has to protect the knight with the other rook. अब Morphy ये rook game में लाता है not by doubling but by sacrificing the rook. In exchanges के बाद rook d1 threatening to take his knight and the rook, so black decides to play queen e6 to trade queens. What do you do here? Morphy lets go of his pin. When bishop takes d7, why would he do such a thing? He had a plan. This is known as the opera mate. White sacrifices the queen. After takes, we have checkmate. Look at the pieces. Only 2 for white, but white wins. This is chess, not checkers. This is not even chess. This is pari. After a net expenditure of 109 million euros transfer window में under Luis Campos, it looks like कि this PSG is the most gelled, सबसे ज़्यादा mechanistic, सबसे ज़्यादा prepared, the best PSG team possibly since Qatari takeover. ये टीम इन माय ओपिनियन लुइस एनरिके की क्राउन जूल टीम है, उसके कोचिंग करियर का बेस्ट एग्जांपल. दिस इज द बेस्ट ही हैज एवर डन इन माय ओपिनियन. अब हाँ, लुइस एनरिके ने बार्सिलोना के साथ बड़ी ट्रॉफीज जीते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग मेथोडोलॉजी, जहाँ पे लुइस एनरिके की खुद की फिलोसफी और उसका एक्सपीरियंस ऑफ द गेम, हाउ ही फील्स द गेम, वो टीम के साथ दिख रहा है एंड इट्स ऑल कमिंग टुगेदर वेरी नाइसली. आई थिंक वो पीएसजी में हो रहा है. लुइस एनरिके की पोजिशनल प्ले इनसाइट इज क्वाइट अनमैच्ड. इनफैक्ट वो इतना ऑब्सेस्ड है अबाउट कंट्रोलिंग एवरी सिंगल पोजीशन. उसको पता है, ही वांट्स टू नो ऑल द पॉसिबल पोजीशंस. चेस में भी यही होता है, एक अच्छा ग्रैंड मास्टर जानता है कि क्या पॉसिबल सिचुएशंस अकर कर सकती हैं, कहाँ कहाँ पे उसके पीसेस को रखा जा सकता है. दिस इज व्हाट लुइस एनरिके स्ट्राइव्स फॉर. वो अपने प्लेयर्स को सारे इंटरनल एक्सटर्नल क्यूज देता है कि भैया कोई भी अनस्टेबल, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल फेज ऑफ द प्ले होगा, यू विल नो व्हाट टू डू. Movía por donde él quería, implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. This is PSG at their best. Luis Enrique truly is a grandmaster of football. Beaucoup de séances. Sí. Parfois même, tu te mets sur la plateforme, Sí. tu regardes d'en haut. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cet Esto es un exercice? juego de posición natural. Nosotros hacemos juegos de posición con lateralidad, es decir, que haya direccionalidad del juego. Es decir, en esta parte juegan los defensores, mediocampistas y los delanteros. ¿Ves? Lateral, central, central, o sea, vamos haciendo variación. Este juego reúne un poco lo que es la idea de fútbol que nosotros tenemos. Es tener el balón más que el rival y cuando lo perdemos, presionar muy rápido. Continuamente ves cambios de posición, ahora están los rojos dentro, tienen que recuperar el balón, los verdes tienen la pelota. Cuando pierde el balón verde, rápido tiene que presionar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que en el partido. Nosotros al rival, cuando perdemos el balón, no le damos tiempo. Presionamos, pa, 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 pa. Eso implica tomar muchas decisiones muy rápido y tomar riesgos. Pero implica que cuando lo dominas, y nosotros ya lo dominamos, tenemos mucho más el balón que el rival. Y para nosotros esa es la clave. Recently इस स्टाइल ऑफ प्ले पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है. बोला जाता है कि भाई इतने सारे ऑटोमेटिज्म स्ट्रेन जब तुम करते हो तो यू रियली ब्रिंग डाउन द अनसर्टेनिटी ऑफ द टीम. एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना टीम की, वो कम हो जाती है. बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हेल्प शेप इंटेंशंस, व्हाट यू नीड टू डू. हर एक एक्शन का इंटेंशन इज द सेम, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पे टीम थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. नाउ पीएसजी हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशन. पीएसजी की टीम इंश्योर्स कि हमेशा उनके पास एक हाई एंड वाइड प्लेयर हो, आइदर इट इज हकीमी का ओवरलैप या फिर यूजुअली दैट्स हाउ दे डू इट, इसकी उनके दोनों विंगर्स हाई एंड वाइड खेलते हैं एंड देन दे ट्राई टू कंबाइन अटैक द फुल बैक वगैरह वगैरह. बट एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है उनकी विंगर्स की और वो यूजुअली हमेशा हाई एंड वाइड होते हैं. दीज आर द रूल्स दैट हेल्प शेप इंटेंशंस. क्या यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है? होती है.
बट जिस चीज को कॉमनली रिस्क एवर्जन की तरह बोला जाता है, इट इज इनफैक्ट नॉट रियली रिस्क एवर्जन। अब भाई फुटबॉल को बहुत अलग अलग तरीके से खेला जा सकता है। तुम बाउट्स में बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स के बाद एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा, बहुत ज्यादा हाई अनसर्टेनिटी वाला एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर तुम रिपीटेडली लो अनसर्टेनिटी वाले एक्शंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। इनफैक्ट डेम्बले का ही केस लो भाई, डेम्बले ने अपने करियर में एक नया लेवल हिट करा है। ही इज क्वाइट लिटरली ऑन मेसी रोनाल्डो नंबर सिंस 2025। डेम्बले के एग्जीक्यूशन लेवल्स ने एक ऐसा हाई हिट करा है भाई जो हमने आज तक डेम्बले के करियर में नहीं देखा। एक प्लेयर जिसको समझा जाता था जिसकी डिसीजन मेकिंग खराब है, ही लुक्स रियली रियली गुड, ही लुक्स रियली क्रिस्प, और हर एक डिसीजन एवरीथिंग लुक्स वेरी हाई IQ। अब डेम्बले ने ये नेक्स्ट लेवल कब रीच करा है जब डुए, क्वारट्स के लिए बारकोला आया एंड उन्होंने स्टेप अप किया है। इट मेक्स अ डिफरेंस। जब डुए, बारकोला और क्वारट्स के लिए इस मिक्स में आते हैं तो दे इंप्रूव PSG की फ्लेक्सिबिलिटी। हम ये समझते हैं कि अनसर्टेनिटी इज द एसेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बट हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट अनसर्टेनिटी इस PSG के फॉर्मेट में? PSG हर 10 मिनट में डिफेंडर को एक अलग क्वेश्चन पूछती है। समटाइम्स दे आस्क देम, डू यू हैव एन आंसर फॉर बारकोला? समटाइम्स इट्स डुए, समटाइम्स इट्स क्वारत्स्केलिया, समटाइम्स इट्स डेम्बेले। जब डेम्बेले इंटीरियर आता है तो कांगन ली फॉल्स नाइन जाता है। दे हैव अ वेरी नाइस मिक्स ऑफ रोटेशन एंड वर्सेटाइल प्लेयर जो भाई अलग अलग पोजीशंस पे जा सकते हैं। इनफैक्ट सब एक दूसरे की पोजीशन पे खेल सकते हैं एंड कैन गिव अ डिफेंडर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब तुम ये चीज करते हो ना तो यू इंक्रीज व्हाट इज नोन इन थर्मोडायनामिक्स एज एंट्रोपी। जब एंट्रोपी बढ़ती है तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस, डिफेंडर के लिए काम करना मुश्किल होता है। लेफ्ट से प्लेयर, राइट से प्लेयर, 1v1 डिफेंड करना, लॉन्ग बॉल्स डिफेंड करना, शॉर्ट आ रहे हैं प्लेयर्स, लॉन्ग जा रहे प्लेयर्स, दिस ऑल मेक्स PSG ridiculously difficult। इनफैक्ट लिवरपूल के अगेंस्ट एक भी मूवमेंट नहीं था जब लिवरपूल के फुल बैक्स न्यू एग्जैक्टली हाउ टू काउंटर PSG ने अक्रॉस बोथ लेग्स 47 शॉट्स लिए थे। दे कंसीडर्ड ओनली 23 शॉट्स अगेंस्ट लिवरपूल। दिस इज क्रेजी लेवल ऑफ डोमिनेंस। क्या पुरानी PSG टीम्स ने ऐसे बड़े गेम्स जीते हैं? यस, नेमार, एम्बापे, वेराटी, इनकी टीम ने भी लिवरपूल को हराया था, बट दिस लेवल ऑफ डोमिनेंस इज थोड़ा डिफरेंस एंड इट साउंड्स इवन क्रेजियर क्योंकि मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट, ये कहीं से भी स्लाउच प्लेयर्स नहीं है। दीज आर प्लेयर्स जो कि ऑल टाइमर लिस्ट में इवेंचुअली पहुंच जाएंगे। आई थिंक ये सारी चीजें मिला के PSG जैसा खेल रही है दैट लुक्स इनक्रेडिबली डेंजरस। PSG रूल्स और रेगुलेशन तो लगाती है अपने अटैकर्स पे, हाई एंड वाइड खेलेंगे, कब रन इन बिहाइंड देंगे, कब ड्रॉप करेंगे, लेकिन उनके पास एक दूसरा तरीका है अनसर्टेनिटी डेवलप करने का, और इसका पूरा जूस लाइज इन देयर मिडफील्ड। अगेंस्ट लिवरपूल अक्रॉस बोथ लेग्स विटीनिया ने 268 टचेस लिए थे। ही कंप्लीटेड 212 पासेस, और तुम इसका पास मैप देखो, विटीनिया ने ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं जहां से पास ना दिया हो या फिर टच ना कराओ बॉल। गोलकीपर से बॉल ली है, सेंटर बैक को पास करिए, गोलकीपर से बॉल ली है, फुल बैक्स को पास करिए, मिडफील्डर्स को पास करिए, वाइड विंगर्स पे स्विच करिए, विंग पोजीशन से वापस बैक पासेस करें, और फाइनल थर्ड में थ्रू बॉल्स निकाली हैं। दिस इज इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ पासेस। विटीनिया इस सीजन तो इनक्रेडिबल रही है, बट उसका यूजेज फ्रीक्वेंसी देखो तो तुम बौखला जाओगे। हाउ डू यू स्टॉप अ मिडफील्ड भाई? अगर तुम इन बंदों को प्रेस करने जाओगे तो फाबियन रूइज भी गोलकीपर से पास ले सकता है, विटीनिया भी गोलकीपर से पास ले सकता है, जॉन नेविस भी गोलकीपर से पास ले सकता है। ये तीनों ही प्लेयर्स वेराइटी ऑफ सिचुएशन में बॉल रिसीव कर सकते हैं। हाफ टर्न पे रिसीव कर सकते हैं, प्ले को फेस करते हुए रिसीव कर सकते हैं, लॉन्ग बॉल्स पास कर सकते हैं, शॉर्ट पासेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम कैन ड्रिबल, दे आर वेरी प्रेस रेजिस्टेंस। चेस और फुटबॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टू कंट्रोल द मिडल। पेप गार्डियोला ने बोला था कि भाई चेस और फुटबॉल इसलिए सिमिलर है क्योंकि दोनों ही गेम्स में अगर तुम मिडफील्ड कंट्रोल करते हो तुम गेम कंट्रोल करते हो। मिडल ऑफ द पार्क, मिडल ऑफ द चेस बोर्ड, ये चीजें कंट्रोल करना मुश्किल है। लुइस एनरिके की टीम ये सब इसलिए आसानी से अचीव करती है क्योंकि उनके मिडफील्डर्स इतने सारे एक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। भाई हाउ डू यू इवन स्टॉप देम? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप अ टीम लाइक PSG, स्पेशली जब उनके पास बॉल है। चेस और फुटबॉल में दो ही तरीके की सिचुएशंस डिस्क्राइब कर सकते हो, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो स्टैटिक पोजीशंस और डायनेमिक पोजीशंस की एसेंशियली फाइट चल रही है पूरे गेम में। स्टैटिक पोजीशंस हैव लॉन्ग टर्म प्लसेस एंड डायनेमिक पोजीशन हैव शॉर्ट टर्म प्लसेस। एक साइड पे ज्यादा मेथोडिकल, वेल प्रोसेस्ड अटैकिंग पॉसिबिलिटीज होती हैं। दे नो उनके पास एग्जैक्टली कितने एक्टिव पीसेस हैं और इसके हिसाब से वो वर्क करते हैं कि एक वल्नरेबल किंग को कैसे चेकमेट किया जाए। ऑन द अदर हैंड डायनेमिक पोजीशंस क्रिएट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट सीमिंगली अननेचुरल, इलॉजिकल पोजीशंस जो कि बहुत हार्ड होती हैं डिफेंड करनी। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू काउंटर
Dynamic positions can beat static positions, static positions can beat dynamic positions. आखिर में ये प्लेयर और कोच पे डिपेंड करता है कि भाई किस सिचुएशन में स्टैटिक पोजीशन बेटर है, किस सिचुएशन में डायनामिक पोजीशन बेटर है. टू अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली तुम ये प्ले देखो डायनामिक पोजीशन का. इसमें क्या होता है, विंगर पहले ऑफ साइड होता है, ऑन साइड आता है और रन देता है टू प्रोड्यूस द असिस्ट. और तुम इन कंपैरिजन देखो एक स्टैटिक पोजीशन ह्यूगो डीरो की, वो पूरे थ्रू आउट द प्ले ऑफ साइड रहता है और वो हमेशा बैकलाइन के पीछे रहता है एंड इज ऑन साइड जस्ट व्हेन द असिस्ट इज मेड. आखिर में डुए, क्वारत्सकेलिया, विटिनिया, कांगिन ली, डेम्बेले, आखिर में इन सब प्लेयर्स को ऐसे क्यूज दिए जाते हैं लुइस एनरिके की तरफ से दैट दे नो एग्जैक्टली कब डायनामिक सिचुएशन प्रोड्यूस करनी है, कब स्टैटिक सिचुएशन प्रोड्यूस करनी है. अब तुम ये गोल देखो डेम्बेले का. डेम्बेले, डुए ने ये पूरा जो सीक्वेंस ऑफ प्ले है ये दे हैव प्रोड्यूस्ड दिस विदाउट इवन लुकिंग अप एक भी टाइम. दिस इज एन ऑटोमेटिज्म. अगर तुम्हें फुटबॉल में जानना है, अगर तुम्हें फुटबॉल में पॉइंट आउट करने होते हैं प्री प्लान्ड ऑटोमेटिज्म्स, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई प्लेयर्स कितनी बार स्कैन कर रहे हैं. पीएसजी में देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स जब तुम देखते हो भाई प्लेयर्स को स्कैन ही नहीं करना पड़ता. दे आर एबल टू पुल ऑफ मूव्स विदाउट इवन लुकिंग अप ऑन द पिच. दिस इज अ टीम जो कि एक डायनेमिक और स्टैटिक पोजीशंस के मिक्स को रट के बैठी है. दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू. पीएसजी सबसे ज्यादा पोजीशन रखती है लीग वन में एंड दे ऑल्सो हैव द बिगेस्ट फील्ड टिल्ट इन लीग वन. एक कमाल की चीज होती है अबाउट स्टैटिक्स, इसकी ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कंपेयर टू डायनेमिक पोजीशंस जो कि थोड़ी देर के लिए जिंदा होती हैं फिर खत्म हो जाती हैं. स्टैटिक पोजीशंस लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. पीएसजी इज वन ऑफ दोस टीम जो स्टैटिक पोजीशंस को एम्प्लॉय करती है टू प्रोड्यूस एक बहुत ही भयानक सस्टेन्ड प्रेशर. दे कीप कमिंग. वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पोजीशन रख सकते हैं एंड दे कैन कीप इट ऑपोजिशन के डिफेंसिव थर्ड में. एंड भाई दिस इज व्हाट मेक्स चेस एंड फुटबॉल इंटरलिंक्ड. जितना ज्यादा मैं फुटबॉल समझ पा रहा हूँ उतना ही ज्यादा मुझे लग रहा है मेरी चेस की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है. और ये जो रिसेंट मेरा इंटरेस्ट है चेस में, इट हैज ब्रॉट अबाउट एक न्यू फाउंड एप्रिसिएशन दोनों ही स्पोर्ट के लिए. अब कुछ लोग डिसएग्री करेंगे इस चेस और फुटबॉल की एनालॉजी में कि दे आर नॉट रियली रिलेटेड. अब क्या, चेस पीसेस तो लिविंग ही नहीं है, कुछ इमोशन, ह्यूमन फैक्टर चेस पीसेस में होता ही नहीं. लेकिन फुटबॉल में इमोशंस इन्वॉल्व है, आखिर में इंसान ही खेल रहा है. और जब इमोशंस, हाई स्टेक्स, प्रेशर, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं तो वेरिएंस की जो देवी है वो गेम में आ जाती है. वेरिएंस मेक्स एवरीथिंग डिफिकल्ट. भाई तो द बेस्ट वे आई हैव फाउंड टू डिस्क्राइब फुटबॉल इज कि भाई इट इज लाइक चेस बट विद अ रोल ऑफ डाइस. अगर मुझे कुछ लाइफ ने सिखाया है कि अगर तुम रिस्क लेने की एबिलिटी रखते हो, इफ यू कैन रोल द डाइस अ लॉट ऑफ टाइम्स, you are very likely to get a 6 someday.